Welcome guys, this is Abhishek Tiwari on my channel Ask Abhi. So here I am with my new video for Informatic Practices new. The code is 065 and here we are taking classes for class 12th. In this we are covering the tutorial for Python Pandas. This is the series for Python Pandas and upcoming series will be for different topics. So as I have uploaded some of the topics of Pandas, we had discussed about the basics of Python Pandas, introduction, different data structure we were discussing. In that we had discussed about the basics of data structure like series data structure and how to manipulate those data structure. These all things we had discussed. In this tutorial I am going to discuss about the data frame. Basically we will start from the second data structure, that is Python data frame, which is very important. Most of the question is asked in the examination from this section, so it is very important topic in Informatic Practices class 12th, and we will start from the introduction of data frame, and later on we will cover other topics like how to create different properties, features of data frame, and how we can manipulate it. So these all things we are going to cover in this tutorial. Okay, before starting the video I want to tell you that you can join my Telegram channel @AskAbhi19490. you can go to my channel, link is given here. So using this you can join my channel also for getting updates and going through all other videos. Okay, so let's start the tutorial. So first we will see introduction part, introduction of our topic. So in last chapter, those who have already seen my previous video, we had discussed about the basic data structure, which is series. We got some of the information about Python Pandas, data structure and series. It is not able to handle the data in the form of 2D or multi-dimensional related to real time. Yes, when we were discussing about series data structure, mostly we had discussed about, or earlier also in my first video, I have discussed that series uses one-dimensional data structure, whereas for accommodating two-dimensional data, we need to use data frame. And for three-dimensional data structure or organization of data, we are having panels. So here we are in the second topic, which is data frame, and data frame is able to handle two-dimensional or multi-dimensional data structure. So here I am starting, that is difference between, basic difference between series and why we are using this data frame, because here we are having two-dimensional data structure. Now for such task, Python Panda provides some other data structure like data frame and panels, etc. For 2D especially data frame is there, and for 3D panels are there. So as I told you, I will use bilingual language, means Hindi as well as English. So some of the topic I will discuss in Hindi also, so that it can reach out more student, those who are from Hindi medium, it will benefit them also. So data frame objects of Panda can store 2D heterogeneous data. What it says, data frame object जो है Panda का, वो क्या स्टोर कर सकता है डेटा को. heterogeneous data means different type of data. heterogeneous, when we talk about heterogeneous, two kind of data are there, heterogeneous and homogeneous. homogeneous हम देखते हैं जब हम यूज करते हैं अरेज. अरेज में क्या होता है, हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो सेम डेटा टाइप का होता है. ओके, अगर हम एक एलिमेंट इंटीजर यूज कर रहे हैं तो बाकी सारे एलिमेंट भी इंटीजर होंगे. लेकिन जब अपन बात करते हैं हेटेरोजेनस की, सो इट मींस एट द सेम टाइम सम ऑफ द एलिमेंट कैन बी ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, अदर एलिमेंट कैन बी ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप. मींस एक ही टाइम पे कुछ एलिमेंट्स इंटीजर हो सकते हैं, कुछ फ्लोट हो सकते हैं, कुछ कैरेक्टर भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकते हैं. तो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट ऑफ पेंडा कैन स्टोर टू डायमेंशनल डेटा. सो पहली चीज तो समझ में आ रही है कि ये 2D फॉर्म में डेटा को स्टोर करेगा. 2D मींस टू डायमेंशनल विल बी देयर, सो वन डायमेंशनल विल बी विड्थ और कॉलम वाइज एंड सेकेंड विल बी रो. ओके, सो 2D है, इट मींस इट विल लुक लाइक अ टेबल. सो एक्चुअली इट विल स्टोर डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म.
तो पहली चीज क्या समझ में आ गई कि जो डेटा फ्रेम है वो डेटा को 2 डायमेंशनल फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में स्टोर करेगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग। उसके अलावा सेकेंड थिंग क्या बोल रहा है ये, हेट्रोजीनस डेटा। हेट्रोजीनस मीन्स यहाँ पे डिफरेंट टाइप के डेटा एट ए टाइम स्टोर किए जा सकते हैं, लाइक 1, 1.3, यहाँ पे कैरेक्टर भी हो सकता है, ओके। और यहाँ पे और भी कई तरह के जो भी डेटा टाइप्स अपन बेसिक डेटा टाइप पढ़े हैं, किसी भी टाइप का डेटा यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, ओके। देन नेक्स्ट थिंग क्या बोल रहा है, ऑन द अदर हैंड पैनल ऑब्जेक्ट ऑफ पैंडा कैन स्टोर 3D हेट्रोजीनस डेटा। पैनल के बारे में अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये एक तरह से कलेक्शन होता है, किसके, डेटा फ्रेम का कलेक्शन होता है। तो इस तरह से ये क्या बनाता है, 3D डेटा स्ट्रक्चर बनाता है, ओके। सो वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्योंकि वो सिलेबस में भी कवर्ड नहीं है पैनल। सो अपन इसमें बेसिकली डिस्कस करेंगे डेटा फ्रेम के बारे में। तो नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर। बेसिक थिंग से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, जैसे हमने सीरीज स्टार्ट किया था, डेटा फ्रेम इज ए काइंड ऑफ पेंडा डेटा स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली पेंडा लाइब्रेरी प्रोवाइड्स दिस डेटा स्ट्रक्चर, ओके, which stores data in 2D form. Actually it is 2-dimensional labeled array which is an ordered collection of column where column can store different kind of data. ओके, सो ये क्या बोल रहा है, डिफरेंट कैसे, ये 2D अरे भी अपन पढ़ चुके हैं। तो 2D अरे से सेम जैसे सीरीज 1D अरे से डिफरेंट था, वैसे ही जो डेटा फ्रेम है वो 2D अरे से डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि ये लेबल्ड अरे होता है। लेबल्ड अरे है इसलिए डिफरेंट है नॉर्मल अरे से। इसमें अपन लेबल कर सकते हैं, मींस कॉलम के नेम्स अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, वो तो है ही। प्लस जो रोज होंगे, रोज के भी नेम यहाँ पे अपन ये जो इंडेक्सिंग है ये अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जैसे कि क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ये 0, 1, 2, 3, 4 होता है, ये तो अरे में भी अवेलेबल है। बट समटाइम वी नीड टू चेंज दिस इंडेक्सिंग फॉर्मेट। ये इंडेक्सिंग फॉर्मेट ये सीरीज में भी मैं बता चुका हूँ, तो होपफुली आप लोग अगर प्रीवियस वीडियो देखें तो ये समझ में आ जाएगा इजीली। तो इसके जगह पे हम अगर 0 से स्टार्ट नहीं करना चाहते इंडेक्स, तो हम कुछ भी दे सकते हैं, लाइक A, B, C, D, या कोई रोमन नंबर दे सकते हैं 1, 2, 3, या और भी कोई भी वैल्यू यहाँ पे हम असाइन कर सकते हैं एज इंडेक्स लेबल। तो ये फैसिलिटी अपन को मिल जाती है पेंडा डेटा फ्रेम में। सीरीज में भी फ्रेम फैसिलिटी थी, बट वो केवल 1D था, ओके, 1 डायमेंशनल था, मतलब एक ही कॉलम था। तो हम ये कह सकते हैं कि कई सीरीज के कलेक्शन को हम डेटा फ्रेम बोल सकते हैं, क्योंकि एक सीरीज मतलब एक कॉलम यहां से यहां तक था, ओके। फिर सीरीज जो 2 है मान लो, उसमें एक कॉलम हो गया जो कि यहां से यहां तक हो गया। फिर वैसे ही सीरीज 3 में एक कॉलम हो गया, सीरीज 4 में एक कॉलम हो गया, सीरीज 5 में एक कॉलम हो गया, 3, सीरीज 4, सीरीज 5। तो इस 5 सीरीज को अगर कंबाइन कर दे अपन, तो अपन को क्या मिल गया, इसको अपन एक डेटा फ्रेम बोल सकते हैं, ओके, जहां पे कॉलम वाइज डेटा स्टोर होने वाला है। और रोज तो सेम रहेंगे ही रहेंगे, ओके। इसकी जो इंडेक्सिंग होगी वो 2 कोऑर्डिनेट्स पे होगी। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर सेल को अगर अपन को बताना है, तो क्योंकि इस अरे का नाम, सॉरी, इस डेटा फ्रेम का नाम अगर A है, तो इसकी जो सब इंडेक्सिंग होगी वो इस तरह से होगी। इसमें 2 यूज करेंगे अपन, 2 इंडेक्स यूज करेंगे, जबकि सीरीज में केवल अपन 1 यूज करते थे, ओके। सो यहाँ 2 कैसे यूज करेंगे, फर्स्ट अपन बताएंगे रो का, यहाँ पे रो का इंडेक्स वैल्यू आएगा और यहाँ पे कॉलम का इंडेक्स वैल्यू आएगा। तो ये अगर हमको इस पर्टिकुलर सेल का एड्रेसिंग करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो ये रो नंबर कौन सी है, इंडेक्स बाय डिफॉल्ट क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है, तो इस रो का इंडेक्स नंबर है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा इंडेक्स 1। और इस कॉलम का इंडेक्स नंबर क्या है, 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो इसलिए इस पर्टिकुलर सेल का जो एड्रेस होगा वो क्या हो जाएगा, A इंडेक्स 1 इंडेक्स 4, A14, ओके। किसी और का देख लेते हैं, लेट मी इरेज दिस थिंग्स so it will easy for you to understand। अब अपन कुछ और देख लेते हैं, ओके। मान लो अपन को इस पर्टिकुलर बॉक्स को देखना है, लेट्स टेक डिफरेंट बॉक्स, दिस बॉक्स। इस बॉक्स को अगर अपन को देखना है, इसकी एड्रेसिंग करनी है, तो A इज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये तो रहेगा ही। रो की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है अपन को, तो इस रो की, इस पर्टिकुलर रो की क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे,
ये देखो जो भी लेवल है, अभी यहाँ पे लेवल 3 है इसलिए 3 आया हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3, कॉलम की वैल्यू देखो यहाँ पे, कॉलम की वैल्यू क्या है 2, तो इसकी एड्रेसिंग हो जाएगी 2। तो इस तरह से हम किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट तक पहुंच सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सेम थिंग इज एक्सप्लेन्ड ओवर हियर। तो ये अपन नेक्स्ट पे चलते हैं, ये दैट इज द बेसिक, सेम है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस सीरीज में 1 डायमेंशनल था, यहाँ पे 2 डायमेंशनल हो गया। ओके, देन अपन देख लेते हैं क्रिएशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा फ्रेम। नाउ हाउ टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम, दैट वी विल डिस्कस। सो क्रिएशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा फ्रेम। So data frame object can be created by passing a data in 2D format। यहाँ पे सीरीज में हम डेटा एक 1D स्ट्रक्चर और 1D अरे फॉर्मेट में पास कर रहे थे, यहाँ पे हम 2D अरे फॉर्म में पास करेंगे। तो जो फर्स्ट इसका जो सिंटेक्स है वो अपन देख लेंगे। तो फर्स्ट लाइन, एज वी नो वी नीड टू इम्पोर्ट पैंडा, सो दैट लाइन इज सेम विच वी आर यूजिंग इन सीरीज ऑल्सो, ये लाइन सेम रहेगा, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इम्पोर्ट पैंडा एज पीडी, यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो, एनी नेम यू कैन गिव, ओके, अकॉर्डिंग टू यू। नाउ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी कोई अपने हिसाब से नया नाम देना है, जो भी आप नेम देना चाहते हो अपने डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का। लेट्स टेक इट एस df1, और भी कुछ भी नाम दे सकते हो, नेमिंग कन्वेंशन यूज कर सकते हो। देन इक्वल टू व्हाट यू हैव टू राइट pd डॉट डेटा। यहाँ pd क्यों आया, जो भी नाम आपने यहाँ दिया है वो सेम नाम यहाँ पे आ जाएगा, अगर आपने कुछ और लिखा होता है तो वो यहाँ आता है, ठीक है। डॉट डेटा फ्रेम, इट विल रिमेन सेम वॉट एवर इट इज रिटन, सेम वे में यहाँ पे डेटा फ्रेम लिखना है। यहाँ पे अपन को विद इन ब्रैकेट क्या पास करना है, पहला चीज पास करना है, जैसे हम सीरीज में पास कर रहे थे, डेटा पास कर रहे थे, बट वो 1D होता था, यहाँ पे हमको 2D फॉर्म में डेटा स्ट्रक्चर पास करना है। उसके बाद फिर क्या है, हम कॉलम का सीक्वेंस बता सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कॉलम इक्वल टू कॉलम सीक्वेंस। कॉलम सीक्वेंस मीन्स मान लो हम कॉलम का नेम देना चाहते हैं, रोल नंबर, ओके, देन नेम, देन क्लास, ऐसा देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे कॉमा के साथ यहाँ पे लिख सकते हैं कॉलम सीक्वेंस। और तीसरा चीज होता है इंडेक्स, तो इंडेक्स सीक्वेंस भी दे सकते हैं, मान लो हम देना चाह रहे हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, तो इस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। हम एग्जांपल्स देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। एंड दीज थिंग्स आर ऑप्शनल, ये जो चीजें हैं ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो दो, और नहीं तो ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू लेगा, बाय डिफॉल्ट कॉलम नेम लेगा और बाय डिफॉल्ट इंडेक्स लेगा। ये पास करना मस्ट है, इसके बिना काम नहीं होगा। देन यू कैन क्रिएट डेटा फ्रेम बाय वेरियस मेथड पासिंग डेटा वैल्यू लाइक, तो हम डिफरेंट मेथड्स का यूज कर सकते हैं, या तो हम 2D फॉर्म में एनडी अरेज, जो कि नंपाई का यूज करके अरेज बनाते थे 2 डायमेंशनल, वो बना सकते हैं। सीरीज टाइप के ऑब्जेक्ट्स पास कर सकते हैं अपन, अदर डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स भी पास कर सकते हैं, इसके अलावा हम डिक्शनरी पास कर सकते हैं, ओके, लिस्ट पास कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें अपन पास कर सकते हैं, डिक्शनरीज, लिस्ट, ओके, ये सारी चीजें अपन पास कर सकते हैं। सी फर्स्ट ऑप्शन इज क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम 2D डिक्शनरी। तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल डिक्शनरी कैसे यूज करेंगे, तो बेसिक अगर हम याद करें तो डिक्शनरी जब हमने पढ़ा था, तो डिक्शनरीज वैल्यू कैन इटसेल्फ कंटेन अनदर लिस्ट और अनदर डिक्शनरी। हमने ये पढ़ा था कि डिक्शनरी खुद में भी एक और लिस्ट कंटेन कर सकता है एज ए वैल्यू, ओके, किसी भी डेटा टाइप को स्टोर कर सकता है, तो लिस्ट भी कर सकता है एज ए वैल्यू, की वैल्यू पेयर होता है इसमें। तो हम यहाँ पे अब देखते हैं, ओके, तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक डिक्शनरी अपन ने बना ली। डिक्शनरी कैसे बनाए हैं, तो ये 2 डायमेंशनल डिक्शनरी है। देखो इसमें क्या हो रहा है कि एक वैल्यू है और उस वैल्यू में भी एक पूरा लिस्ट पास कर रहे हैं, तो एक्चुअली ये 2 डायमेंशनल हो जाएगा। तो स्टूडेंट इज द की एंड वैल्यू इज दिस फर्स्ट लिस्ट विच इज फ्रॉम हियर टू हियर, ओके, तो ये फर्स्ट हो गया, इसके n एलिमेंट हो गए। देन सेकेंड वैल्यू अपन क्या दे रहे हैं यहाँ पे, मार्क्स, तो ये मार्क्स हमको इतने मिल गए, ओके। देन थर्ड की क्या दे रहे हैं, स्पोर्ट्स, एंड द वैल्यू फॉर स्पोर्ट्स इज दिस। तो इससे क्या हो रहा है, ये जो 3 कीज थे वो क्या बन गए, यहाँ पे कॉलम्स बन गए, 3 कीज बन गए कॉलम, और उनकी जो वैल्यूज थी वो उस कॉलम की वैल्यू बन गई, ओके। यहाँ पे कोई इंडेक्स के लिए हमने वैल्यू पास नहीं की, तो क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स हो जाएगा 0। लिसन, यहाँ पे हमने कॉलम के लिए भी कोई वैल्यू पास नहीं की, बट बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, जो
कीज होती है यहाँ पे, उन्हीं को ये कॉलम में अप्लाई कर देता है। ओके, so in the above example index are automatically generated from 0 to 5 and column name are same as key in dictionary। तो ये ऑटोमेटिक होता है, जबकि सीरीज में जब हम ये यूज करते थे तो जो सीरीज में अगर डिक्शनरी पास करते थे तो जो कीज थी वो क्या बन जाती थी, वो बन जाते थे इंडेक्स, और वैल्यूज जो थे वो बन जाते थे रो की वैल्यूज। ओके, सो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि हम यहाँ 2D फॉर्मेट में पास कर रहे हैं। इंडेक्स आर ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाई NP रेंज इन। सो ये इंटरनली कॉल हो जाता है, इसलिए इंडेक्स क्या होता है, अपने आप जनरेट हो जाते हैं। ओके, यहाँ पे कॉलम नेम आर जनरेटेड फ्रॉम कीज ऑफ 2D डिक्शनरी। कॉलम नेम कहाँ से जनरेट होगा, जो भी कीज होंगे आपके 2D डिक्शनरी है वहां से कॉलम जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से अपन एक डिक्शनरी जनरेट कर सकते हैं, और डिक्शनरी के थ्रू डेटा फ्रेम जनरेट कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन। ओके, सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल। तो यहाँ पे हम एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे डेटा फ्रेम। रिमेंबर हियर D and F आर कैपिटल। यहाँ पे हमको डेटा पास करना है तो हम यहाँ पे डिक्शनरी पास करेंगे। सो देख लो, यहाँ पे हम अलग से एक डिक्शनरी बना लेते हैं। पहले डायरेक्ट भी पास कर सकते थे बट थोड़ा इजी हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे अलग से ले रहा हूँ। ठीक है, डिक्शनरी के लिए हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं, पता है। फर्स्ट एलिमेंट अपन देंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या था देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट एलिमेंट वाज स्टूडेंट्स, यानी नेम है, हम नेम भी दे सकते हैं वहां पे, नेम देन मार्क्स एंड देन स्पोर्ट्स। तो हम स्टूडेंट भी लिख सकते हैं, STD लिख दे रहा हूं मैं, और STU लिख देता हूं। देन ये तो हो गई की। अब इसके वैल्यूज पास करते हैं, तो अगेन एक लिस्ट पास कर देंगे अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे अलग अलग नेम दे देते हैं अपन, फॉर दिस ये यूज कर लेते हैं। यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते हैं। ओके, लाइक दिस। ओके, सो ये वन एलिमेंट कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे, एक कॉमा देंगे। तो अगेन अब अपन को की वैल्यू पेयर यूज करना है। सो यहाँ पे फिर से अपन लिखेंगे मार्क्स के लिए, तो मार्क्स के लिए भी फिर ये हो जाएगा कुछ ऐसा, और यहाँ पे कॉलन। देन यहाँ पे वैल्यू अपन पास करेंगे लाइक दिस। तो यहाँ पे भी मार्क्स पास कर देते हैं, तो क्योंकि 3 है तो 78। कॉमा 80 कॉमा 65। तो ये 3 वैल्यू पास कर दिए अपन ने, फिर कॉमा लिखेंगे। ओके, ये मैं आपके सुविधा के लिए इसको नेक्स्ट लाइन में ले जाता हूँ, सो दैट इट विल बी विजिबल फॉर यू गाइस। ओके, ये ऐसा लिख लेते हैं। यहाँ पे अगेन अब हम लिखेंगे स्पोर्ट्स के लिए। तो स्पोर्ट्स लिखने से पहले हम ये चालू कर लेंगे, स्पोर्ट्स। ओके, देन यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए भी अगेन हम एक लिस्ट बनाएंगे। यहाँ पे भी कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। टेबल टेनिस के लिए हम लिख देते हैं TT। ओके, बैडमिंटन के लिए लिख देते हैं BD, और फिर लिख देते हैं फुटबॉल के लिए। ओके, सो ये हमने डिक्शनरी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। देन इसको पास करना है यहाँ पे, तो केवल अपन को क्या लिख देना है, जो भी ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं वो यहाँ पे पास कर देना है, डिक्स लाइक दिस, और ये डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। देन लेट्स रन दिस वन।
तो क्या आता है रिजल्ट देखते हैं। Okay, it's getting executed. एग्जीक्यूट हो रहा है। See, this got executed over here. अब अगर अपन देखते हैं यहाँ पे, तो ये अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, यहाँ पे देख सकते हो। ओके, यहाँ ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हुआ है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ये जो इंडेक्स है 0, 1 और 2 असाइन हुए हैं। फर्स्ट कॉलम स्टूडेंट का है जिसमें 3 वैल्यू है। फर्स्ट कॉलम ये हो गया स्टूडेंट का, 3 वैल्यू अभिषेक, राजेश एंड रोहित। मार्क्स में भी 3 वैल्यूज थी, तो अपन देख सकते हैं। ओके, मार्क्स में 3 वैल्यूज थे, वो दिखाता हूं मैं आपको कौन कौन से 3 वैल्यूज थे। 78, 80 एंड 65, तो वो यहाँ असाइन हो गए। और स्पोर्ट्स के लिए भी हमने 3 वैल्यू दी थी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन एंड FB, TT, BD एंड FB, सो ये यहाँ असाइन हो गए। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग डिक्शनरी। बाकी भी आगे देखेंगे। ओके, सो उससे पहले अब चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक्स पे। और भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, तो इस तरह से ये क्रिएट हुआ था, इंडेक्स स्पेसिफाइड बाय यू। तो अगर हम चाहते हैं इंडेक्स भी देना, तो हम अलग से इंडेक्स भी दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं और साथ में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इंडेक्स भी देना चाहते हैं तो उसको कैसे चेंज करेंगे, वो फिर से मैं एक बार प्रैक्टिकली दिखा दे रहा हूँ। डायरेक्ट इंडेक्स देने के लिए कुछ नहीं करना है अपन को। यहाँ पे जैसे हमने ये पास किया है, उसके बाद हमको लिखना है कॉमा इंडेक्स, तो ये वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट लिखना है आपको। और इंडेक्स यहाँ प्रोवाइड करने के लिए फिर से अपन को इंडेक्स वैल्यू दे देनी है। मान लो हम चाहते हैं ABC देना, तो हम लिख सकते हैं A, B, C। ओके, तो इस तरह से ये इंडेक्स पास कर सकते हैं अपन। अब अगर रन करेंगे तो देखो क्या होता है। अब यहाँ पे ये जो इंडेक्स 0, 1, 2 आ रहे थे, वो अब इंडेक्स क्या हो गया, यहाँ पे देखो ये इंडेक्स हो गया A, B एंड C। तो इस तरह से ये चेंज कर सकते हैं। एक और चीज कर सकते हैं अपन, अलग से हम एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। लिस्ट में यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। लाइक अगर अपन देना चाहते हैं 101, 102, 103 और रोल नंबर की लिस्ट है अगर, तो लिस्ट भी यहाँ पे पास कर सकते हैं। सिंपली अपन को इसके जगह पे क्या लिखना होगा, लिस्ट। ओके, तो ये लिस्ट हो जाएगा। देन रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पे अब जो इंडेक्स है वो क्या हो गया, 101, 102, 103। तो इस तरह से अपन कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं डेटा फ्रेम का, और उसमें इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। अगर हम चाहते तो कॉलम नेम भी चेंज कर सकते थे अपने अकॉर्डिंग, वो भी ऑप्शन था यहाँ पे। दिखाता हूँ वो भी करके। यहाँ लिख देते हैं कॉलम्स। ओके, उसके लिए भी एक कॉलम 1 दे देते हैं इसको। फॉर टेस्ट जस्ट आई एम गिविंग, कोई भी नाम दे सकते हो आप। कॉलम 2 दे देते हैं, और यहाँ पे कॉलम 3 दे देते हैं। ओके, C3। तो अब यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट ये वैल्यूज थे, स्टूडेंट, स्पोर्ट्स एंड मार्क्स, इसको रिप्लेस कर देगा इन वैल्यूज से। ओके, देखते हैं यहाँ पे अपन क्या चेंजेस आते हैं। ओके, देखो यहाँ पे वैल्यूज यहाँ पे चेंज हो गए, बट क्योंकि C1 के लिए हमारे पास यहाँ कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है, सो ये बाय डिफॉल्ट NaN इंसर्ट कर देगा। सो ये एक न्यू चीज है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, कि अगर हम एक्सप्लिसिटली, क्योंकि यहाँ पे हम डिक्शनरी पास किए हैं और बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट कॉलम के लिए उसने ये वैल्यू ली थी, इसलिए ये वैल्यू यहाँ पे
चेंज कर देगा। ओके, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कॉलम ना दें जब हम डिक्शनरी पास करें। अगर आप 2D अरे पास कर रहे हो तो आप दे सकते हो। ओके, तो इस चीज को मैं हटा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाह रहा था तो इसलिए मैंने ये किया था, क्योंकि कई बार ये लगता है कि रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस तो करता है बट वैल्यूज ऑल्सो गेट रिप्लेस्ड, बिकॉज इनके रिस्पेक्ट में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं थी। C1 कॉलम के लिए कोई वैल्यू नहीं थी, C2 के लिए कोई वैल्यू नहीं थी और C3 के लिए कोई वैल्यू नहीं थी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक चीज तो अपन जानते ही हैं कि अगर ये बेसिक जो अपने देखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट जो है 0 से n-1 तक के इंडेक्सिंग होगी। देन क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रॉम 2D डिक्शनरी, एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने एक अलग अलग डिक्शनरी बनाई हुई थी जो कि सिंगल डायमेंशनल थी। ओके, सिंगल डायमेंशनल डिक्शनरी के लिए अपन ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे पहले ये डिफरेंट डिक्शनरीज थे, इन डिक्शनरीज को हम एज ए वैल्यू पास कर दिया हमने यहाँ पे दूसरे डिक्शनरी में, क्योंकि एक डिक्शनरी का एलिमेंट डिक्शनरी भी हो सकता है खुद, और उसके बाद उसको स्टोर कर लिया केवीफी में। और ये केवीफी जो एक न्यू डिक्शनरी है वो न्यू डिक्शनरी पास कर दिया यहाँ डेटा फ्रेम में। सो 2015 के लिए अल्टीमेटली अगर अपन देखें तो यहाँ ईयर 2015 पास किया हुआ है, और ईयर 2015 में क्या वैल्यू है, ये वैल्यूज है पूरी, तो ये पूरी वैल्यू रिप्लेस हो जाएंगी 2015 में। 2016 वाली वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस हो जाएंगी और 2017 की वैल्यू यहाँ रिप्लेस हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली ये भी नेस्टेड डिक्शनरी बन गया। तो इसका जो न्यू ऑब्जेक्ट मिला केवीफी, ये हमने यहाँ पास कर दिया, तो इसलिए 2015 में वैल्यूज आ गई जो भी इस डिक्शनरी में स्टोर थी। 16 में ये वैल्यू आ गई, और जो कीज हैं वो कीज क्या आ गए 2015, 16 सॉरी इसमें क्या हुआ, कॉलम के जो नेम है 2015, 16 और 17 आ गए, लेकिन जो इसकी इंडेक्सिंग हुई बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली इंडेक्सिंग हुई इन से। ओके, क्योंकि इन सारे के लिए हमारे पास क्वार्टर क्या था, Q1, इन ये सारे Q1 के लिए थे, ये सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए, तभी यहाँ पे इंडेक्सिंग हो पाएगी, अदरवाइज NaN आ जाएगा अगेन। Q2 के लिए कौन कौन सी वैल्यू थी, ये थी, तो यहाँ पे Q2 के लिए आ गई सारी वैल्यू। Q3 के लिए ये वैल्यूज थी, तो यहाँ Q3 में ये वैल्यूज आ गई अलग अलग टाइम के लिए, 15, 16, 17 के लिए। Q4 के लिए ये वैल्यूज थी, तो ये यहाँ पे आ गई। ओके, ये वैल्यूज यहाँ पे आ गई। तो इस तरह से भी अपन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने एक और डिक्शनरी पास की है अनदर डिक्शनरी के वैल्यू में, तो इस तरह से ये नेस्टेड डिक्शनरी बन गया। ओके, और इसके जो अलग अलग कीज थे वो कीज क्या हो गए, अब यहाँ पे कैसे वर्क कर रहे हैं, एज ए इंडेक्स वर्क कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने देख लिया डिक्शनरी से कैसे अपन क्रिएट कर सकते हैं डेटा फ्रेम। उसके अलावा अपने पास एक और ऑप्शन है जो हमने देखा था, 2D अरेज का यूज करके हम इंडेक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। 2D ND अरेज, ND अरे मीन्स नमपाई अरे, तो इसके लिए हमको नमपाई भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, और नमपाई अरे आपने पहले ही पढ़ा होगा क्लास 11th में कि कैसे नमपाई अरे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, इजी है। तो एक नमपाई अरे क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे अपन, np.array, इसके हमने नाम दे दिया NARR। यहाँ वैल्यूज पास कर दिए अपन नमपाई अरे, क्योंकि 2 डायमेंशनल है, तो एक बिगर ब्रैकेट लिए और उसमें 1 2 3 4 5 6 ये वैल्यू पास कर दी। हम एक्सप्लिसिटली इसका डेटा टाइप देना चाहते थे, इसलिए यहाँ पे हमने क्या पास कर दिया, int 32, मीन्स इसका डेटा टाइप हो जाएगा int 32। नाउ इसका रीसेपिंग करना है अपन को, तो हमने रीसेपिंग कैसे कर दिया, 2,3। ओके, सो ये अगर नहीं करते तो भी चलता है, इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। शेप देखने के लिए हमने यूज किया था, तो 2:3 है, 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, शेप चेंज नहीं किया, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए यूज किया कि इसके 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। तो 2 रोज दिख रही है अपन को, क्योंकि फर्स्ट रो में ये बन जाएगा। ओके, फर्स्ट रो ये हो जाएगा और ये सेकेंड रो बन जाएगा। ठीक है, ये देखने की इस लाइन की कोई जरूरत नहीं थी अपन को। देन डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए सिंपली हमको ये
जो अरे है numpy अरे ये पास करना है, तो NAR पास कर दिया हमने। NAR पास किया क्योंकि इसमें हम डिक्शनरी की तरह कॉलम्स के नेम ऑटोमेटिकली असाइन नहीं होंगे, तो बाय डिफॉल्ट कॉलम नेम भी 0 1 2 हो जाएगा और इंडेक्स भी 0 1 2 हो जाएगा। एक्सप्लिसिटली अगर हम चाहते हैं कॉलम का नेम देना, तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल में अपन को दिख रहा है कि एक्सप्लिसिट नेम अगर देना होता तो हम ये जो वैल्यूज हैं ये भी पास करते, ये आर्गुमेंट भी पास करते, कॉलम्स में पास कर देते 1 2 3, और अगर हम इंडेक्स भी देना चाहते हैं तो देखो इंडेक्स भी यहाँ पास किया हुआ है नेक्स्ट ऑप्शन में AB। तो इस तरह से अगर करते तो हमको 1 2 3 कॉलम नेम मिल जाता, AB इंडेक्स मिल जाता, या जो भी हम यहाँ पास करते वो वैल्यू यहाँ पे आ जाती। ओके, तो इस तरह से हम 2D अरे numpy अरे का भी यूज कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम 2D डिक्शनरी ऑफ सेम सीरीज ऑब्जेक्ट। अब सीरीज ऑब्जेक्ट के थ्रू भी अपन ये काम कर सकते हैं। ओके, तो फटाफट देख लेते हैं इसको। pd.series हमने एक सीरीज क्रिएट कर ली, ठीक है, और उस सीरीज जैसे अपन क्रिएट करते थे लास्ट एग्जांपल में ही अपन देखा था, अपन ने वैल्यूज दे दी, डेटा जो यहाँ देते थे, इंडेक्स दे दिया क्लास 12th 11th क्लास 10th और क्लास 9th, ये वैल्यूज हमने दे दी। उसके बाद एक और सीरीज क्रिएट की pd.series, जो कि किसके लिए है, मार्किंग के लिए, पॉपुलेशन के लिए है, मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हो गया एवरेज मार्क के लिए। अगेन एक सीरीज क्रिएट की, इसके इंडेक्सिंग भी सेम रखेंगे अपन। ओके, इंडेक्सिंग सेम रखना पड़ेगा। ओके, नाउ अपन क्या कर रहे हैं, एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हमने ये यहाँ पे कीज दे दी और ये वैल्यूज दे दी। जैसे हम डिक्शनरी पास कर रहे थे वैसे यहाँ पे हम सीरीज ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। तो और इस तरह से फिर जो भी हमने डिक्शनरी यहाँ बनाया इसको यहाँ पास करेंगे। सो क्योंकि हमने 0 और 1 लिया था एज ए की, तो यहाँ पे कॉलम नेम 0 1 हो जाएगा। क्लास 12th 11th 10th और 9th ये ऑटोमेटिकली कहाँ से आ जाएगा, ये क्लास इंडेक्स जो अपन ने लिया हुआ है, सीरीज का जो इंडेक्स लिया है वो इंडेक्स यहाँ आ जाएगा। दोनों इंडेक्स सेम होने चाहिए, अदरवाइज अगर इंडेक्स वेरी करेंगे तो जिसकी वैल्यू दोनों में अवेलेबल नहीं है उसके लिए NaN आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो ये कॉलम मैच होने चाहिए, तो इंडेक्स मैच हो जाने चाहिए, तभी यहाँ पे इंडेक्सिंग होगी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। डिक्शनरी इस तरह से अगर नाम देते पॉपुलेशन एंड एवरेज मार्क, तो कॉलम नेम भी यहाँ पे आ जाता पॉपुलेशन एंड एवरेज मार्क, और यहाँ पे ये सेम रहता, और उस तरह से ये वैल्यू 2 डायमेंशनल फॉर्म में हमको डेटा फ्रेम में दिखती। ओके, तो ऐसे भी क्रिएट कर सकते थे। अनदर डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का भी हम यूज कर सकते हैं, वो भी ये देख लेते हैं। डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट एक अपन ने बना लिया NAR के थ्रू ही, जो सेम लास्ट एग्जांपल में देखा। उसके बाद हमने क्या किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम्स दे दिया और इंडेक्स दे दिया ABC। ओके, क्योंकि यहाँ पे अरे से बना हुआ था, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम सेकंड एंड थर्ड कॉलम A एंड B, ये अपन को एक फर्स्ट डेटा फ्रेम मिल गया। अब दूसरे डेटा फ्रेम में भी ये वैल्यू देंगे तो जस्ट ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है, इसमें जस्ट और कुछ नहीं है। ये सेम कॉपी अगर करना चाहें तो एक डेटा फ्रेम को पास कर सकते हैं, हो सकता है 2-3 डेटा फ्रेम भी पास हो सकते हैं, उसको उसमें हम डिफरेंट ऑपरेशन कर सकते हैं लाइक एडिशन एंड ऑल, वो लेटर ऑन यू पीपल विल गेट टू नो दैट। तो इस तरह से फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेम चीज यहाँ कॉपी हो गया, क्योंकि ये डेटा फ्रेम की वैल्यू हमने यहाँ पास कर दी थी और ये न्यू डेटा फ्रेम 2 बन गया। डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करने के लिए कुछ नहीं, अपन प्रिंट में लिख सकते हैं प्रिंट, और फिर डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। तो इस तरह से ये अपन देख सकते हैं। ओके, या फिर अगर अपन डायरेक्ट IDLE पे हैं, जो बेसिक IDLE है, वहां पे सिर्फ DTF लिखने से भी ये डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, किसी अदर अपन उसमें है ये जहाँ पे इंटरप्रेटर बेस्ड IDLE है वहां ये यूज होगा, जो बाय डिफॉल्ट IDLE होती है, और नहीं तो अपन प्रिंट जो कमांड है प्रिंट मेथड, उसमें अपन DTF पास कर देंगे ऐसे, तो ये प्रिंट हो जाएगी इसकी वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट थिंग जो है अपन देखेंगे, जैसे अपन ने सीरीज ऑब्जेक्ट, ये तो हमने क्रिएशन पढ़ लिया कि कैसे कैसे अपन कोई भी डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करने पे यू पीपल विल गेट टू नो डिफरेंट जो बेसिक मेथड्स है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, जो ज़्यादातर यूज होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड हैं, आप रेंज का यूज कर सकते हो, जो बेसिक चीज आपने पढ़ा है, रैंडम का यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू पॉपुलेट द डेटा फ्रेम एलिमेंट्स। ओके, डेटा फ्रेम एट्रीब्यूट की बात करते हैं, जैसे सीरीज के साथ भी बहुत सारे एट्रीब्यूट थे, ऑलमोस्ट वो सारे एट्रीब्यूट यहाँ भी वर्क करेंगे, कुछ 1-2 हैं जो यहाँ पे डिफर करते हैं। ओके,
बाकी ये सारा चीज आपने पहले भी पढ़ा था सीरीज में, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। और इन एट्रीब्यूट को एक्सेस करने के लिए सेम थिंग है, जो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नेम है वो लिखना है पहले आपको, उसके बाद डॉट का यूज करके एट्रीब्यूट नेम लिखना है, देन यू कैन एक्सेस द एट्रीब्यूट। ओके, सो फर्स्ट जैसे अपन देख लेते हैं, इंडेक्स एट्रीब्यूट है, इट शोज द इंडेक्स ऑफ डेटा फ्रेम। डेफिनेटली हम इसके थ्रू डेटा फ्रेम के इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, हम चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। उसके अलावा फिर क्या है, कॉलम्स। तो कॉलम्स के थ्रू हम कॉलम्स को देख सकते हैं, प्लस उसको वापस से चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। देन एक्सेस है, इट रिटर्न्स बोथ द एक्सेस इंडेक्स एंड कॉलम, ये दोनों एक्सेस को रिटर्न करेगा, इंडेक्स को भी और कॉलम को भी। डेटा टाइप मीन्स डी टाइप क्यों है, सो इट रिटर्न्स द डेटा टाइप ऑफ द कंटेंट बाय डेटा फ्रेम, ये जो डेटा फ्रेम जो डेटा टाइप कंटेन करके रखा है उसको रिटर्न करेगा। देन साइज, तो अगेन यहाँ पे इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन ऑब्जेक्ट, जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएंगे। हम देखना चाहते हैं कितने एलिमेंट्स हैं, तो ये टोटल नंबर रिटर्न कर देगा। सेव, सो इट विल रिटर्न द टपल ऑफ डायमेंशन ऑफ डेटा फ्रेम। टपल क्यों रिटर्न करेगा, ये कुछ इस फॉर्म में रिटर्न करेगा। ओके, यहाँ पे इस तरह से, क्योंकि ये टपल का फॉर्मेट है। और कैसे रिटर्न करेगा, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बताएगा ये, ठीक है। देन वैल्यूज, सो इट रिटर्न्स द नंपाई फॉर्म ऑफ डेटा फ्रेम, तो ये नंपाई अरे के फॉर्म में डेटा फ्रेम रिटर्न करेगा इन द फॉर्म ऑफ वैल्यूज। एम्प्टी, इट इज एन इंडिकेटर टू चेक वेदर डेटा फ्रेम इज एम्प्टी और नॉट। ये एम्प्टी जब हम यूज करते हैं तो इसकी दो वैल्यू होगी, अगेन ट्रू और फॉल्स। अगर कोई एलिमेंट है डेटा फ्रेम में तो वैल्यू फॉल्स आएगी, अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है डेटा फ्रेम में तो वैल्यू एम्प्टी आ जाएगी। एन डायमेंशन, रिटर्न एन इंट रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एक्सेस, तो ये नंबर ऑफ एक्सेस रिप्रेजेंट करेगा। सीरीज में 1 रिप्रेजेंट करता था, 1 क्योंकि वो 1 डायमेंशनल था, यहाँ पे 2 रिटर्न करेगा। टी इज टू ट्रांसपोज द इंडेक्स एंड कॉलम। क्या होता है जब 2D डाटा स्ट्रक्चर अपन पढ़ते हैं तो इसमें क्या है, 2 डायमेंशन है, ये हो गया आपके कॉलम्स। ओके, और ऐसे जो रहता है वो रो, मीन्स वर्टिकल जो है दैट इज कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टल है दैट इज रो एंड कॉलम। तो हम अगर चाहते हैं कि इसको चेंज कर दें, मीन्स रो को कॉलम बना दें और कॉलम्स को रो बना दें, तो इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, या देख सकते हैं ट्रांसपोज। ओके, तो ट्रांसपोज चेंजेस द रो टू कॉलम्स एंड कॉलम टू रोज। तो ये हो गया। तो ये कुछ बेसिक एट्रीब्यूट थे, हम इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, हाउ वी कैन एक्सेस दोज थिंग्स। तो अगर हम लिखते हैं DTF इंडेक्स, तो वो उसकी इंडेक्सिंग जो वैल्यू है केवल उसको प्रिंट कर देगा। ओके, किस फॉर्म में, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में देगा ये। ओके, देन अगर कॉलम देखना चाहते हैं तो कॉलम भी प्रिंट कर सकते हैं। फिर एक्सेस देखना चाहते हैं तो एक्सेस रिप्रेजेंट करेगा। ओके, ये सारे एक्सेस मीन्स हमको कॉलम भी मिल जाएंगे, इंडेक्स भी मिल जाएगा, इंडेक्स का ऑब्जेक्ट मिल गया और कॉलम का भी ऑब्जेक्ट मिल गया, दोनों अपन को मिल जाएगा, और उसका डेटा टाइप भी बता देगा ये। देन अगर हम डेटा टाइप देखना चाहते हैं तो फर्स्ट का डेटा टाइप, फर्स्ट कॉलम का डेटा टाइप इंटीजर है, सेकंड कॉलम का इंटीजर, थर्ड कॉलम का भी इंटीजर। ओके, तो सारे कॉलम का डेटा टाइप मिल जाएगा। साइज देखना चाहते हैं, साइज मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द डेटा फ्रेम, तो ये यहाँ पे 6 आया है क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेटा फ्रेम कितने एलिमेंट कितने थे, 6 थे। ओके, देन हम क्या देखना चाहते हैं, शेप। तो शेप ये बताएगा जो अरे है या फिर जो 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है अपना डेटा फ्रेम का, उसका शेप क्या है। तो 2,3 व्हाट डज इट मीन, 2 rows are there and 3 columns are there. Okay, 3 columns and 2 rows. Then end in number of dimension, so number of dimension it will return 2 because we are having 2 dimension. Okay, column and rows. So इस तरह से हम इस डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। तो ये अपन बेसिक चीज देख लिए। आई थिंक दैट मच इज सफिशिएंट as of now. Okay, so today we had discussed about Python pandas data frame, basic introduction of data frame, how it works, 2 dimension, how it organizes the data, how we can create a new data frame, different methods of creating data frames, and apart from that we had also learned that different attributes which are available in data frame object, how to use them, what are the uses and different features of attribute and how we can utilize those things. So these all things we had discussed today. Again मैं एक बार हिंदी में रिपीट करता हूँ। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा फ्रेम देख लिया अपन ने। डेटा फ्रेम होता कैसा है, वो डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करता है ये अपन ने देखा। ओके, उसकी एड्रेसिंग कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इंडेक्सिंग कैसे होती है,
इसके अलावा अपन ने देखा कि डिफरेंट मेथड्स का यूज करके हम कैसे डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा अपन ने देखा कि कैसे डिफरेंट जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं और उन डिफरेंट एट्रीब्यूट्स का क्या यूज है, ये सारी चीज अपन ने इस वीडियो में देखी। नेक्स्ट वीडियो में अपन मैनिपुलेशन देखेंगे, डेटा फ्रेम मैनिपुलेशन, हाउ वी कैन ऐड एलिमेंट्स, हाउ वी कैन रिमूव एलिमेंट्स एंड हाउ वी कैन यूटिलाइज डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट फीचर्स ऑफ डेटा फ्रेम। उसके अलावा हम और कुछ देखेंगे जो डिफरेंट एडिशन और डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेटा फ्रेम टू डेटा फ्रेम, मतलब उनमें हम अरिथमेटिकल ऑपरेशन कैसे करेंगे, वो सारी चीज देखेंगे। सो हियर आई एम एंडिंग माई दिस वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, like my video if you think it is beneficial, share with your friends, okay, so that other will get also benefited. This is my link for Telegram channel. If you are having any doubt, you can ask me on my Telegram channel. Just go to your Telegram, type @askabhi19490, you will get my channel, okay, for informative practices, and you can join that. Okay guys, so take care, bye bye. Again we will meet with new video. Till then, bye.